So hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem, queries quality and percentage. In this problem we have given a table queries which contain a 4-column query name, result, position and rating. This table may have a duplicate rows and it contains information collected from some queries on a database. And the position column has value from 1 to 500 and rating column has value from 1 to 5. If the rating is less than 3 is a poor query. Okay, understand, इतनी चीज़ें तो हमें समझ आएगी. So let understand the problem, what problem wants from us. So problem is that we first of all we know some terminologies like we define query quality. हमें query quality define की गई है क्या? Query quality is actually at the average of ratio between query rating and its position. So it is actually a average of ratio weighting between query rating and its position. Means average of all the different queries and their query or all different queries rating divided by its position. एग्जाम्पल तो समझेंगे, पहले इतना क्लियर तो हुआ. हमें क्या करना है कि हमें जो एवरेज फाइंड करना है, हमें एवरेज फाइंड करना है उनका रेशियोज का, जो कि तो आपकी क्वेरी रेटिंग होगी और उसकी पोजीशन होंगे. We have also defined poor query percentage. In the percentage of all queries with rating less than 3. हमने अभी ऊपर भी देखा था कि जो रेटिंग जिसकी रेटिंग लेस देन 3 है वो होती है पुअर क्वेरी. तो हमें उसका चाहिए परसेंटेज की हमारी जो कितने व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल क्वेरीज विथ रेटिंग लेस देन 3. Question is that write a solution to find each query name, the quality and the poor query percentage. And quality and poor query percentage should be rounded to the 2 decimal places. Return the result in any order. Okay, let's understand through an example. So we have given a query table where two different name are there, name of queries there, dogs and cat. First dog with position 1 and rating 5. Dog, second dog with position 2 rating 5. Third dog with position 200 and rating 1. Okay, same for the cat, position 5 and rating 2. For second cat position 3 rating 3. For third 7 and 4. तो हमें एज आउटपुट दिख रहा है, हमें फाइंड करना है क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज. सो इफ वी हाउ वी कैलकुलेट इट, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें तो पता है ग्रुप बाय तो करना पड़ेगा. सिंपली एक चीज़ तो पता है, ग्रुप बाय कर देंगे क्वेरी नेम के अकॉर्डिंग, हम ग्रुप बाय कर देंगे. ओके, एंड वन थिंग इज दैट हाउ टू कैलकुलेट द क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज. तो क्वालिटी के लिए हमें ये करना है कि हमारी जितनी हमें क्या करना है, पोजीशन दी थी क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि जो क्वेरी रेटिंग है उसको डिवाइड कर देंगे पोजीशन से और जो जितने हैं उनका हम ले लेंगे एवरेज. मतलब कि 5/1 प्लस 5/2 प्लस 1/200, इसका जो समेशन आएगा उसको डिवाइडेड बाय उसका हम एवरेज ले लेंगे. मतलब कि डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा इन द केस ऑफ डॉग. तो हमें ये तो पता चलेगा हमें क्वालिटी कैसे निकालनी है. पुअर क्वेरी परसेंटेज क्या होगी? इफ अगर हमारी रेटिंग लेस देन 2 है तो हम और लेस देन 3 है तो काउंट कर लेंगे. लेस देन 3 1, लेस देन 3 नहीं, लेस देन 3 मतलब 1 आया. 1 डिवाइडेड बाय कितनी है, नंबर काउंट कितने हैं, 3. 1 डिवाइडेड बाय 3 सिंपली उसका हम परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे. सो लेट स्टार्ट विद द राइटिंग द क्वेरी. तो वी हैव टू नीड टू सेलेक्ट query name, first column of the output, and second column should be
first thing is, so it should be rounded to the two places, so I simply round it to two places. Okay, after it we need to find out the average. So simply I use average function, and what inside the average function, तो inside the average function we need what, हमें एवरेज किसका लेना था, रेटिंग डिवाइडेड बाय पोजीशन का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेटिंग डिवाइडेड बाय पोजीशन। ओके, इसको एज हमें क्या लेना है, क्वालिटी। ये हमारा हो गया दूसरा कॉलम फॉर द आउटपुट। अब हमें थर्ड कॉलम करना है। थर्ड कॉलम में हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम भी हमारा क्या होगा, राउंडेड टू टू प्लेसेस। बट हियर इज सम trick. What that trick, how we can calculate it? So suppose that first of all we need to check it is less than 3 or not. This is less than 3 or not, this it is less than 3 or not. तो अगर ये लेस देन 3 है, तो अगर हम थोड़ा सोचें, तो अगर हम इससे 1 से रिप्लेस करते हैं, अगर लेस देन 3 है तो हम 1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। मतलब लेस देन 3 है तो 1, अदरवाइज 0। फिर उसके बाद इसका हम अगर समेशन लेंगे, समेशन जब इसका लेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों तो 0 हो गए थे और ये बचा हुआ 1 है, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 1 हो जाएगा। और टोटल काउंट कितने हैं इसके, इस कैट के 3 काउंट है, तो 1 डिवाइडेड बाई 3। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो सिंपली हम समेशन ले लेंगे, किसका, सम ले लिए। अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना कि हमें वहाँ 1 रखना है और वहाँ अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो 0 रखना है। तो सिंपली मैंने एक किसी वीडियो में बताया था केस, तो यहाँ हम केस का यूज करेंगे। केस क्या है, व्हेन हमारी रेटिंग अगर लेस देन 3 होती है, ठीक, तो क्या कर देंगे, देन 1, हम वहाँ कर देंगे 1। एल्स क्या, एल्स हम कर देंगे 0 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें समेशन मिला वो, और उसको 100 से डिवाइड कर दिया। मतलब कि समेशन यहाँ पे हमें 100 मिला एंड 100 शुड बी डिवाइडेड बाई, सॉरी 1 मिला एंड 1 into 100 शुड बी डिवाइडेड बाई द काउंट ऑफ। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सम आएगा हम इसे कर देंगे डिवाइड किससे, कि ये काउंट कितना है, ये कैट जो हमारा है उसका काउंट कितना है। एज अ पुअर क्वेरी परसेंटेज। ओके, अभी हमने किया था फ्रॉम क्वेरीज वेयर, क्वेरी जो नेम है, क्वेरी नेम, भाई हम क्वेरी नेम हमारा नल नहीं होना चाहिए, इज नॉट नल। एंड इट शुड बी ग्रुप बाय क्वेरी, it should be grouped by query name। अब द क्वेश्चन, एक छोटा सा डाउट ये हो सकता है कि ये जो काउंट एस्ट्रिक है ये हमें क्या देगा, क्योंकि बेसिकली जब हम यहाँ सेलेक्ट स्टार यहाँ मतलब सेलेक्ट यहाँ यूज करते हैं, तब होता क्या है, जितने काउंट है होल में, जितना टेबल में जितने काउंट है वो देता है। तो क्या ये भी वो काउंट देगा जो जितने, मतलब लाइक यहाँ पे डॉग 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 डॉग, कैट 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 है, 3 कैट 3 डॉग है, तो यहाँ 6,
क्या यहाँ पे 6 आएगा? तो बेसिकली जब हम ग्रुप बाई अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमने क्या क्या अप्लाई किया है? ग्रुप बाई अप्लाई किया है क्वेरी नेम पे बेस्ड है। उसके बाद अगर हम काउंट यहाँ करते हैं तो ये हमें देगा क्या? ये हमें देगा कि वो जो पर्टिकुलर क्वेरी नेम है उसकी कितने काउंट हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा कि जब हम ये कैट का चेक कर रहे हैं तो उस टाइम कैट का कितने काउंट है, तो कैट के 3 काउंट आएंगे, तो ये हमें वो देगा। सो लेट ट्राई टू रन इट। What is the problem? Poor percentage where the query is not. मिस्टेक क्या है भाई? Check the manual that correspond to the MySQL version for the right syntax to use near. Oh, I'm sorry, I'm just missing one thing and here. That's why. Now try to run it. So okay, base case तो चल गया. Now try to submit it. So yeah, I think you will like this video. I hope you understand clearly. Thanks for the watching this video.